opportunities in housing projects and challenges. To have a discussion on this topic, I would like to call upon stage my colleague Aditi. हमारे पहले पैनलिस्ट हैं गुरिंदर भट्टी, डायरेक्टर जीबी रियलिटी. गुरिंदर भट्टी emerges not only as a visionary entrepreneur but also as a philanthropist dedicated to societal upliftment. Mr. Gurinder Bhatti. Come on, guys. एक बार जोरदार तालियां. वेलकम सर. हमारे अगले पैनलिस्ट हैं भूपेंद्र सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, डेवलपर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, कोलियर, इंडिया. With an extensive experience of more than 20 years, Bhupendra is a highly accomplished leader in the corporate real estate industry. Welcome, sir. एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए. Then we have Parvez Alam, Senior AVP at Omax Limited, Chandigarh, having several years of experience in real estate field and currently working as a Senior AVP Sales. Welcome all. Over to Aditi. Thank you so much. लेकिन उससे पहले मैं सर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा. भूख लग रही है? किसी किसी भूख लग रही है? Who all are feeling hungry? One person I can see. That's being honest. Who else? We are providing you food for thought. No? जोरदार तालियां. मुझे लगी नहीं अभी हम बार बार पंजाबी वे, पंजाबी लाइफ, पंजाबी. आपसे ज्यादा एक्टिव तो वो छोटा सा बच्चा है. कम से कम इन हिज ओन लैंग्वेज ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. आई एम प्रेजेंट, आई कैन सी फ्यूचर, आई विल बी हियर अगेन. कम ऑन. सो सर थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं आज ना ओमेक्स के साथ शुरू करना चाह रही हूँ, और इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे इनसे जरा एक बहुत ही पर्टिकुलर सवाल पूछना है. साहब मैंने आपके रील्स देखे और उसमें था अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड ऑप्युलेंस एंड देन द फ्यूचर अवेट्स यू. अब ये आपके हाई एंड प्रॉपर्टीज. अब मैं ये जानना चाह रही थी मेरे जैसे बंदे को नहीं, आप मेरा फ्यूचर नहीं है? Definitely. Basically, if I talk about the high-end property, basically what we do, frequently we do the demographic survey, and what we got to know that there is a huge demand in the luxury segment as well as the affordable. But if I talk about the luxury, from last couple of the years, it got increased by multiple percentage. So to make it affordable, what we do, there are some steps that we took. We have, if we talk about the Chandigarh, then we have 1,000 acre of township over there. And if I talk about the luxury segment, then we have a certain percentage fixed to the luxury segment project. And for the affordable, we have defined it somewhere. अगर मैं luxury की बात करूं तो definitely it attracts cost. Definitely land cost is very high, and to build a luxury, we have to keep a very open space and we have to give the multiple amenities to that. To make it affordable, we gives the different ease payment plan. Like if anybody buy the luxury apartment, then he can opt for the easy construction link payment plan. Sometime we give offer to a heavy amount, like the 30 to 40% he can pay at the time of possession. So like if you have a budget of 1 CR, and if you are opting for the 2 CR property, so almost 40 to 50% you have to pay at the time of possession. That takes definitely 3 to 4 years, and rest of the time you can some pay and some you can take a loan. So here, by this process you can afford it. सर तो उस टाइम भी तो पे करने के लिए वो 1 CR जो आपने रखा है वो चाहिए. जैसे कि बताया कि देखिए हाँ, टाइम के साथ में इनकम इंक्रीज हो जाती है. आज अगर हम बात करें तो डिमांड जो लग्जरी सेगमेंट पोस्ट कोविड जो आई है, डेफिनेटली जिसका 2 बेडरूम का फ्लैट है वो चाहता है मेरा 3 में चले जाऊं, जिसका 3 का है वो चाहता है मैं पेंटा हाउस में चले जाऊं. डेफिनेटली क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो एक आया है, तो अपार्ट फ्रॉम एक बेडरूम, एक डेफिनेटली हर घर के अंदर में एक
एक ऑफिस की भी एक रिक्वायरमेंट है, जी, जी। एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है जहां पे कि वो अपना वर्क फ्रॉम होम वहां पे काम कर सकते हैं. जी जी सो दिस इज द नीड. तो लग्जरी जो आज के डेट में नीड है, तो डेफिनेटली उसके लिए हम उसको अफोर्डेबल कैसे बनाए, तो उसके लिए देयर आर सम मल्टीपल स्टेप्स जो हम मैं टाइम के साथ लेते इस जाते हैं. इस डिस्कशन में उसी पे फोकस करने वाली हूँ और गुरिंदर जी मैं उसी बिंदु को बार बार उठाना चाहती हूँ जी। क्योंकि क्या लग्जरी को अफोर्डेबल नहीं बनाया जा सकता? वेयर इज द बैलेंस? सो दिस इज समथिंग आपने व्हाट वाज डू यू रीड माइंड? मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था जब सर बोल रहे थे कि नहीं आई एम टेलिंग यू माय माइंड. दैट वाज एग्जैक्टली गोइंग इन माय हेड. I want to live in a luxurious apartment or in a structure which has the best amenities and something that I can afford at the same time. This is my first time at any real estate summit. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦ ਨਿਊ ਬੇਬੀ ਔਨ ਦ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇਗੀ. ਸੋ ਦ ਕमिंग बैक टू योर इसमें मैं थोड़ा सा ना ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पे जी हमारे साथ डेवलपर्स भी हैं, हमारे साथ इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं. अभी आपने क्रेडाई भी देखा, अभी आपने रेरा से सर को भी देखा, हमारे साथ HDFC बैंक के जो VP हैं वो भी हैं. तो ये पूरा एक तरीके से जो आपका पूरा, मैं शुड आई यूज द वर्ड इकोसिस्टम, तो इट हैज बीन डिमोनाइज्ड अ बिट इन रीसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव, लेकिन जो आपका पूरा सिस्टम है वो यहाँ पे मौजूद है एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम विद देम ओवर डिनर. Yeah. So the answer of your question is like, you know, this was exactly going in my head. कि affordable or luxury, this is all the mindset. कौन ऐसा बंदा है दुनिया में जिसको लग्जरी नहीं चाहिए? जैसे अभी पैनलिस्ट थे, काफी पैनलिस्ट ने ये भी बोला कि जी बिकॉज पंजाबीज ने बहुत ज्यादा ट्रैवल करा है एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वास्ट है. And जो experience we carry, like, you know, going to UK, going to Australia, Canada and all. So we compare. आज अगर मैं ट्राई सिटी को देख लूँ, there is a lot of, I would say, the area and the scope of improvement. And अगर ये बोला जाए कि जी luxury affordable नहीं हो सकती, तो I will not agree to that statement. That depend on the vision of the person who is developing it. And of course, हर डेवलपर का अपना अपना विजन है एंड ऑल डेवलपर्स आर ग्रेट. हर किसी का विजन इज विजन कि भी कोई किसी सेगमेंट में जा रहा है, कोई किसी सेगमेंट में जा रहा है. बट अफोर्डेबल वर्ड आपका अपना माइंड ब्लॉकेज है. दैट इज अ सेलिंग पॉइंट आई वुड से टू अट्रैक्ट द पीपल. बट लग्जरी इज ऑल्सो, आपके लिए लग्जरी की लैंग्वेज या डेफिनेशन कुछ और हो सकती है. मेरे लिए लग्जरी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है. द पीपल सिटिंग देयर, उनके लिए लग्जरी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है. बट व्हेन वी स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द लिविंग, अ कंफर्टेबल लिविंग, अ लाइफ वेयर यू गेट द लाइफ, नॉट ओनली दैट आई एम गेटिंग इनटू अ फ्लैट कि मुझे सिर्फ सोने जाना है, नहाना है, तैयार होना है, चले जाना है. वेयर यू गेट द एक्चुअल लाइफ, वॉट एवर यू रिक्वायर ड्यूरिंग योर डे एंड स्पेशली ऑन द वीकेंड एंड फॉर योर फैमिली, स्पेशली द सिक्योरिटी एस्पेक्ट. That is a life, that is a real luxury which you want, that any human being want. So this is what my answer is. भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं, आप उसको किस लेवल पे रखेंगे? आप उसे टियर 2 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप उसे? थैंक यू सो मच. आई थिंक मैं चंडीगढ़ कुछ साल बाद आया हूँ. हालांकि कॉलियर्स हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन दिस मार्केट. पंजाब में काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं. मैं आई थिंक इट इज़ अ मार्केट जो तैयार हो चुका है अपनी क्लासिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए. द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज कमिंग ओवर हियर इज सिग्निफिकेंट. I was here early morning and my eyes popped out with the kind of development that's happening over here. I think with some completed projects, the upgradation is on the cards, but at the moment inventory बहुत ज़्यादा है. Inventory is like having a huge football ground with a lot of footballs in it. Unfortunately, the goalpost is not visible. I think that is the trick of this game. In case delivery of projects happens, the upgradation to a tier 1 city is around the corner. But before that, there's also a need of having employment. I think office का जो footprint है, the success story of other cities which have developed is always around employment. इधर employment creation की जो market है,
रिटेल का काफ़ी बोलबाला है, मैंने देखा मॉल्स में काफ़ी अच्छे क्राउड्स आ रहे हैं, रेसिडेंशियल इज सेलिंग वेरी वेल. I'd be more happy to see more employment getting created, especially in the IT and manufacturing sector, जो कि ऑफिसेज में डेंसिटी बढ़ाएगा, लोगों को एस्पिरेशनली चंडीगढ़ बुलाएगा. फिलहाल एस्पिरेशन ये है कि यार इन्वेस्ट कर दो. दैट्स नॉट ग्रोथ. ग्रोथ इज जब एम्प्लॉयमेंट वहां पर अवेलेबल होती है, एंड आई थिंक दैट इज द वन मेजर फैक्टर विच इज मिसिंग एट द मोमेंट. बट यस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एनसीआर के आसपास सबसे करीब अगर कोई आता है, आई थिंक somebody said that before also, it is only the Tri-City. It's like you have Noida, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad. I think this is a great area, but like I said, the goalpost is still not visible, unfortunately. Thank you. प्रवेश सर, ये जो बात हुई अभी, इन्वेंटरी की भी बात हुई, पंजाब के बारे में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फॉर सेल. फिर सवाल उठता है एवरीथिंग इज फॉर सेल तो ठीक है, बट आर देयर बायर्स? अभी जैसे सर ने कहा, अभी उन्होंने ही पुट इट रियली वेल कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए सो दैट पीपल कम हियर विद द एस्पिरेशनल वैल्यू एज वेल. देखिए, मैं थोड़ा सा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर मैं फैक्ट और फिगर पे बात करूं, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा. इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में जो अफोर्डेबल जो सेगमेंट है उसकी जो डिमांड है उसकी सप्लाई अभी 50% भी नहीं है. आज हम उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं. और लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डेफिनेटली चंडीगढ़ जो है आज के डेट में 2 स्टेट का कैपिटल है, हम सबको पता है, हरियाणा एंड पंजाब. लेकिन जो रियल स्टेट की मार्केट है, नॉट ओनली हरियाणा एंड पंजाब, पूरा हिमाचल एंड पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, 4 स्टेट की यहाँ पे माइग्रेंसी है. और माइग्रेंसी जो अर्बनाइजेशन है, अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों के अंदर में मतलब हर साल 10 से 15% की अर्बनाइजेशन यहाँ पे बढ़ रही है. और एवरीबडी वांट्स टू सेटल इन द सिटी. तभी ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट आया था, जो शहर आज के डेट में अगर बात करूं स्पेशली फॉर द न्यू चंडीगढ़ की जो प्लानिंग की है, डिजाइन बाय द ज़ुरोंग इंटरनेशनल, बहुत ब्यूटीफुली. अभी मैं आर्किटेक्ट को सुन रहा था, जैसे कि बताया था मिस्टर गिरधर, उन्होंने एक बड़ा सही उन्होंने हाई राइज के बारे में एक फीडबैक दी कि जब हम हाई राइज जो वर्टिकली जब हम बिल्डिंग डेवलप करते हैं तो मोर एरिया हमें ओपन स्पेस मिलता है, सराउंडिंग में हमें ग्रीनरी और बाकी एम्यूनिटीज के लिए. तो आज के डेट में हम न्यू चंडीगढ़ में बात करूं तो हमने मिक्स ऑफ हाई राइज, मिड राइज और लो राइज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पे जोनिंग प्लान किया हुआ और उसी लाइन पे डेवलपमेंट कर रहे हैं. और जैसे कि जॉब की बात अगर हम करते हैं कि यहाँ पे कंसर्न है, तो ऑलरेडी ये आज के डेट में जिस लेवल पे माइग्रेंसी हो रही है, आईटी कंपनीज आर कमिंग अप हियर. बद्दी अगर हम बात करते हैं जो हिमाचल के अंदर में जरूर है, बट हमारे चंडीगढ़ से हार्डली यहाँ से 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. मोर देन 8,000 फैक्ट्रीज आर ओवर देयर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो फार्मा कंपनीज है, यू नेम द फार्मा कंपनीज, दे हैव अ प्लांट ओवर देयर. तो ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, उसके लिए ऑफिस की रिक्वायरमेंट है. तो वी हैव अ मल्टीपल ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग. आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज डिमांड में आज के डेट में चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज ऑफिस की डिमांड आई है. गुरिंदर जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब एक बायर आता है, पोटेंशियल बायर है, अगर उसके एक्सपेक्टेशन क्या है आज की तारीख में? और दूसरा, ठीक है आप हाई एंड आप कह रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर यू आर वेल ट्रेवल्ड. सो फॉरेन का ऐसा क्या है जो आप चाहेंगे कि यहाँ पर हम उसे इनकॉर्पोरेट कर पाए, हम उसे अलग लेवल पर ले जा पाए? व्हाट इज योर विजन? See, gone are days when people want a bricks and mortar type of a property, end user की अगर बात करें. जहाँ से हमने पहला सवाल भी शुरू करा था कि लग्जरी एंड द अफोर्डेबिलिटी, दैट्स अ कॉन्सेप्ट कि डिपेंड है. अगर इसको एक्सप्लेन करने की तरफ जाएंगे तो घंटे लग जाएंगे. सो आज की डेट में जो एंड यूजर है, द फर्स्ट थिंग इज द कंफर्ट एंड पीपल वांट लाइफ. पहले एक टाइम आया था कि पीपल वांट द सिक्योरिटी. कोविड के बाद में चीजें चेंज हुई कि जी अपना एक अच्छा सा घर होना चाहिए कि बी फर्स्ट एंड द एंड लास्ट प्रायोरिटी इज दैट द गुड हाउस. अब जब गुड हाउस के बाद में नाउ द नेक्स्ट लेवल इज कमिंग अप दैट व्हाट काइंड ऑफ कंफर्ट फैसिलिटीज आई एम गेटिंग वेयर आई एम लिविंग. टाइम था, देयर वाज अ टाइम दैट मुझे पार्क फेसिंग चाहिए. देयर वाज अ टाइम यार स्पोर्ट्स अम्यूनिटीज ना मेरे घर के साथ होना चाहिए. देन स्कूल मेरे घर के पास होना चाहिए.
ओके यार कुछ टाइप के एंड यूजर आ गए यार, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज हैज टू बी देयर. सो राइट नाउ द टाइम एंड द एरा इज, इफ आई टॉक अबाउट टुडे एंड द 4 years down the line from now, people want everything, all the amenities, especially that the, like for example, starting from your banquet hall, that you want to organize a party of 200 people, that people want that, you know, good multi-cuisine restaurant where you're living in your group housing, and also on the top of it, that good sports area, that, you know, that you don't need to go outside for, you know, many of the things. So in one line, if I conclude this thing, that the end user today want a kind of a life that no matter which part of the world they go, no matter which 5-star they live in, they must have something in hand to criticize that 5-star facilities, that I am already living in better, I am already living at a place where I am getting a better facilities than what you guys are offering me after spending a lot of money. भूपेंद्र जी, आपने ये पूरा अगर डिस्कशन देखा हो तो एक वर्ड, एक बहुत ही कॉमन एक वर्ड बहुत यूज हुआ है, क्या है वो वर्ड? हाँ, या सस्टेनेबिलिटी पे बड़ी बात हुई है. और जब सस्टेनेबिलिटी पे बात हुई है तो उसमें एक्चुअली कई स्टेक होल्डर्स हैं, खाली एक स्टेक होल्डर नहीं है, खाली डेवलपर की जिम्मेदारी नहीं है, खाली आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है भाई. एट द एंड ऑफ द डे जो लोग उसे यूज करने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है. तो एक सवाल ये भी है कि क्या कस्टमर उसके लिए रेडी है, क्या कस्टमर उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए उसके जो बिहेवियर पैटर्न है, उसके जो इनसाइट्स आपके पास आ रहे हैं, क्या वो उसके लिए तैयार है? दूसरा ये भी है कि हम तब से सस्टेनेबल कर रहे हैं. वन थॉट दैट केम टू माय माइंड, अभी जब AQI हाई गया तो सबसे पहले दे आस्क्ड टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क, कि भाई रोको इसको. So the kind of contribution that has been going to the pollution levels, that also I find it really contradictory. How would you respond to these two comments? I think it's a good question. Unfortunately, answer audience के पास है, मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है. Sustainable आप डेवलपर को बना दो, कंसल्टेंट को बना दो, हमारी जैसी कंपनीज को बना दो, ये इंग्लिश में है. कर क्या रहे हैं? 5 शब्द आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं. हाँ. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इस समय पीपल, दूसरा है प्लैनेट, तीसरा है पीस, फिर है पार्टिसिपेशन. इन शब्दों को मिला के ही सस्टेनेबिलिटी बनती है. हम किस दिशा में जा रहे हैं हमको खुद नहीं पता. हम क्या पीपल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या हम प्लैनेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या हम पार्टिसिपेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या हम पीस की तरफ ध्यान दे रहे हैं. इन सभी चीजों के अंदर there is somewhere, if you combine all of this, is actually sustainability. And unfortunately, we are blaming the developer, we are blaming the government, we are blaming the vehicular pollution, we are blaming everybody other than ourselves. अब इसके लिए कोई, I don't think there is a mechanism to it. It is a realization which has to happen. I think strong platforms जैसे आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग, you're one of the biggest channels in this country, you're a medium. ये कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा. सस्टेनेबिलिटी की बरसात नहीं होने वाली है, सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा अपने आप को, ध्यान देना पड़ेगा. I can tell you, I'll just take an example from what my co-panelists said. They've both been mentioning the word luxury. Audience में भी luxury का शब्द इस्तेमाल होता है. शायद मेरे घर में भी, मेरी फैमिली भी लग्जरी इस्तेमाल करती है, कंपनी में भी लग्जरी का शब्द इस्तेमाल होता है. व्हाट इज लग्जरी? लग्जरी इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. कैन आई अफोर्ड इट और कैन आई नॉट अफोर्ड इट? इज इट प्रैक्टिकल और इज इट नॉट प्रैक्टिकल? अनफॉर्चुनेटली, इफ वी कंटिन्यू डिबेटिंग अबाउट दीज थिंग्स विदाउट एनी एक्शंस, एक डेवलपर आपको एक अच्छी एमिनिटी दे सकता है, एयर कंडीशनिंग प्लांट दे सकता है, बेसमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी बना सकता है, बट मेंटेन करने के लिए तो इट्स अगेन पीपल. एंड दैट्स वेयर वी आर लूजिंग इट, आई थिंक. सो लेट्स नॉट ब्लेम समबडी की AQI इतनी हाई क्यों हो गई. सरकार तो ठीक नहीं करने वाली. ये 2012 में आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर्स अ फ्यू डेज बैक, चाइना वॉज रीडिंग इन द सेम सिचुएशन. दे वर एट अबाउट 650. Within 10 years, वो 38-39 के AQI पे आ जाते हैं, और हम जो 40-45 पे थे, हम 650 पार कर जाते हैं. ये तो
ना अल्लाह ने किया, ना जीसस ने किया, ना श्री राम ने किया, ये तो हमने किया है. So sustainability answer has to come from within us. If we follow the rules that the developer is setting in a condominium or in a society, if we know about what waste management is, it is going to become sustainable. That's all I can say in this. और आपने सरकार का जिक्र किया और हमारे साथ मिनिस्टर साहब हैं यहाँ पर, सरदार हरदीप सिंह मुंडिया. तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि सरकार कैसे, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सरकार कैसे उसमें एक बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकती है. तो यही डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे थे. बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन. आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन एंड आई वुड ऑलवेज से please make it affordable so that as many people can take advantage of it and that would actually serve the purpose. Thank you so much. Thank you very much. I request all the panelists to please stay on stage, sir. Now I request Mr. Jagmeet Jammu, News 18 Punjab Regional Head, to please come on stage, sir, to felicitate our honorable guests. First we have Mr. Gurinder Bhatti, Director GB Reality. Thank you, sir. Then we have Bhupendra Singh, Managing Director, Developer and Management Services, Collier, India. Thank you, sir. एक बार जोरदार तालियां. Then we have Mr. Parvez Alam, Senior AVP at Omax Limited, Chandigarh. जोरदार तालियां. Thank you so much, sir. Thank you, everyone.